السلام علیکم. عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شیزا پرویز. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے G9 میں، جہاں ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ سوشل میڈیا کا یوز جو بچے آج کل استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ راتوں رات وائرل ہو جائیں، راتوں رات وہ امیر ہو جائیں. گاڑیوں اور پیسے کا شوق اتنا ہو گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی چھوڑ کر پیسوں میں لاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم عام آواز سے سوال کریں گے اور ان کی رائے جانیں گے. آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شایان ہے. کیا کرتے ہیں شایان آپ؟ میں پڑھائی کرتا ہوں. اچھا شایان، یہ جو آج کل بچے ہیں، آپ خود بھی بچے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے جو آج کل بچے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ جو ایسے کر رہے ہوتے ہیں انہیں بالکل پڑھائی کی فکر نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اس کے بارے میں میرے یہ خیالات ہے کہ کافی بچے ہیں ابھی ہماری سوسائٹی میں جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بنا رہی ہیں، پڑھائی کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، اور آگے جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ساری پڑھائی کے بارے میں، اگر جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ ہی سکسیس کر سکتا ہے. تو اس کے لیے میری یہ رائے ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ پڑھائی زیادہ کریں، سوشل میڈیا پہ کم جائیں. اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ویڈیوز بناتے بناتے اپنا ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں. اس کے کافی کیسز آئے ہیں. اس کی وجہ سے میری تو یہی رائے ہوگی کہ پڑھائی کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور امی ابو کو بھی کہنا چاہیے بچوں کو کہ آپ اس کو چھوڑیں اور پڑھائی کی طرف فوکس کریں جو زیادہ ضروری ہے. اچھا، تو آپ کیا کہتے ہیں، امی ابو کو انہیں فون دینے چاہیے؟ اگر دینے چاہیے تو کچھ لمیٹیشن تک دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ فی الحال میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اور میری بھی سب کو یہی رائے ہے کہ جو ہے امی ابو کو فون دینا چاہیے، اور فون اس طرح دینا چاہیے کہ لمٹ میں دینا چاہیے. اور اگر ان کو مطلب لگتا ہے کہ میرا بچہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے یا اس طرح کا کچھ کرتا ہے تو وہ چیکنگ بھی تو کر سکتے ہیں نا. فون دینا چاہیے، مطلب ایک دن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 to 2 hours فون یوز کر سکتے ہیں. وہ اس میں کوئی مطلب بری چیز نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بھی چاہیے کہ ساتھ ساتھ پڑھائی کریں اور زیادہ سوشل میڈیا کی طرف جو بری چیزیں ہیں ان کی طرف نہ جائیں. السلام علیکم سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے ثاقب ملک. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ میرا بزنس ہے انگلینڈ میں، تو آتا جاتا ہوں، ہر سال آتا جاتا ہوں. سر یہ جو آج کل بچے ہیں، آپ تو باہر سے آئے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، جو آج کل پاکستان کے بچے ہیں وہ پڑھائی سے بالکل دور ہو گئے، وہ سوشل میڈیا ایپس پہ ان ہو گئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک آدھ ویڈیو وائرل ہو جائے اور وہ راتوں رات امیر ہو جائے. اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ مجھے یہ بہت اچھا نہیں لگتا، بلکہ میرا بیٹا ہے، اس کی میری بہو بھی ہے، وہ بھی ایسے، وہ انسٹاگرام فیس بک میں نا وہ جاتے، وہ بہت غلط ہے، وہ مس لیڈنگ کرتے ہیں لوگوں کو نا. جو فیس بک کا گروپ ہے نا وہ بہت مس گائڈ کرتے ہیں لوگ کو، تو پھر وہ فیملی ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے. تو وہ پھر جب جاتے ہیں ریسٹورینٹوں میں تو وہ جیسے ڈومینیٹ نہیں ہوتا ہے ریسٹورینٹ کو، وہ کیسے کوئی ریسٹورینٹ ہوتا ہے ادھر وہ پاش نہیں ہوتے پر ان کا کھانا ہوتا ہے اچھا. کوئی ریسٹورینٹ لک نائس پر وہ ان کا کھانا نہیں ہوتا. جیسے لندن میں بھی ایسے کافی لوگ ریسٹورینٹ ہیں، وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں پر ان کے جاتے ہیں کھانا نہیں اچھا. لندن جو انٹریکشن ہوتا ہے فیملی کا، جیسے کزنس کے، وہ ہر وقت فون میں ہوتے ہیں، میڈیا میں ہوتے ہیں. میں نے ایکسپلور بھی کیا نا، ریسرچ بھی کیا اس بات پہ نا بچوں میں. میں جب میرے بچے ہیں ان کو لے کے جاتا ہوں، جب ڈیڈز اینڈ ڈیڈز ہوتے ہیں وہ گیدرنگ کرتے ہیں، میں انوالو ہوتا ہوں گیدرنگ میں. جیسے ہم ایسکس میں رہتے ہیں نا چانسفور، تو ماشاء اللہ ہمارا بڑا مسجد ہے. پاکستان کمیونٹی، بنگلہ دیش، انڈین مسلم، تو ہم مکس ہوتے ہیں. پر یہ ہم کر رہے ہیں وہاں پر انٹریکشن جو ہے نا ہم لوگ نا وہ ختم ہو گیا. جب میرا ٹائم تھا نا، میں میری بہن سے کھیلتے تھے، لائک ان ریئل لائف ایکٹیویٹی ہوتا تھا. تو اب جو ہے نا یہ مجھے نہیں، اٹس ناٹ گڈ آئیڈیا. people should realize وہ ہیومن بینگ انسان ہے، ٹھیک ہے نا. انسان کو انسان کو سمجھ گیا نا ایوری تھنگ. جیسے ابھی وہاں پر بھی فون کرتے ہیں نا تو کمپیوٹر میں فون کرتے ہیں، پریس نمبر 1 پریس نمبر 2، پھر ٹائم لگ کے وہ ہیومن کانٹیکٹ وہ ابھی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ سب میڈیا کا ہے. پر ورسٹ، سب سے ورسٹ جو ہے نا فیس بک گروپ، واٹس ایپ، انسٹاگرام، تو وہ میں نے دیکھا وہ سب سے ورسٹ ہے. بٹ دا تھنگ از وہ جو سب ینگسٹر اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ڈسیونگ بھی ہوتا ہے. جو نیوز ہوتا ہے ڈسیونگ پر لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی. تو آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جو پیرنٹس ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اپنے بچوں پہ، یا بس کہنا چاہیے اوکے ہمیں پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، جیسے میرا بیٹا ہے یہ والا جو ہے، یہ پاکستان، یہ ابھی ڈگری پر ہے، باہر پر ہے، تو ابھی میں لے کے ڈینٹسٹ بن گیا. تو بیٹا دوسرا بھی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے. میری فیملی ماشاء اللہ ورک ہارڈ ورکنگ فیملی، ٹھیک ہے. سو I think that the interaction جو فیملی کا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا وہ بھی چلی گئے، وہ سب سوشل میڈیا
से होता है। मैंने देखा काफ़ी लोग इधर भी देखा वो माँ बाप का केयर नहीं करते। तो मैं कितने पुराने लोग टाइप के लोग हैं वो भी माँ बाप को लेके आते, उनके पास पैसे बेशुमार है, काम भी करते हैं, पर उनका फ़र्ज़ बनता है माँ बाप का लुक आफ्टर किया है, तो ये वो, पर अभी नहीं होता। अभी वो सोचते हैं लोग आओ वो देखे वो कर लेते हैं ना, हम गुजारा कर लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? पीर सैयद आसम अशरफ अब्बासी। क्या करते हैं सर आप? इधर कारोबार है हमारा कराची कंपनी में, स्वात पंसार। ये आजकल जो बच्चे हैं सोशल मीडिया बहुत यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ वायरल होने के चक्कर में वो चाहते हैं एक वीडियो वायरल हो जाए और बस वो कामयाब हो जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया जो है ना, इसने बहुत तबाही की है नौजवानों के लिए। नौजवान जितने भी हैं अपना सारा वक्त इल्म ख़त्म हो गया है, ठीक है, वक्त इनकी नींदें तबाह हो गई है। रात को सोशल मीडिया पे ये एक दज्जाली फितना है, और ख़ास करके मोबाइल जो है इसने कुरान और हदीस के जो इल्म है उसमें बड़े बड़े लोग इल्मी जो है मुतासर हुए हैं। और ये कोई सोशल मीडिया में जो हासिल कर रहे हैं ये एक हवा वाली बात है। वला तत्तबिउल हवा, अपनी ख्वाहिश पे मत चलें, ये ख्वाहिश है। तो जितने नौजवान हैं उनसे गुजारिश है कि ये इस मोबाइलों के चक्कर को छोड़कर हकीकी उस्ताद का जो इल्म होता है ना, जो ज़ानुआए तलम्मज़ जिसको कहते हैं कि उस्ताद के सामने बैठ कर इल्म हासिल है, वो है। इसमें से कुछ नहीं हासिल होगा सोशल मीडिया में से। ये महज एक जो है ना धोखा है, और ये सोशल मीडिया में जो दज्जाली फितना है, दज्जाल का यही है ना, हर किसी के हाथ में होगा, दज्जाली फितना होगा, ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा। आयशा, क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। माशाल्लाह। आयशा, जो आजकल बच्चे हैं वो बिल्कुल सोशल मीडिया की तरफ चले गए हैं, उनको पढ़ाई का बिल्कुल रुझान नहीं रहा। वो कहते हैं कि बस एक दिन हम वीडियो बनाएं और हम वायरल हो जाएं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में यही ख्याल है कि ये सबसे पहले पेरेंट्स का कसूर होता है। मोबाइल फ़ोन उनका थोड़ा टाइम के लिए बंद किया जाए तो इससे जो है ना बचा जा सकता है। और जो है ये टिकटॉक सबसे ज़्यादा तो ख़राब बच्चों को इन्होंने कर दिया है। अगर तो बच्चों पे नज़र रखी जाए यूट्यूब और इस पे चैनल्स पे, तो ऐसे ना हो। और दूसरा ये है कि पढ़ाई के साथ साथ ठीक है सोशल मीडिया करें, लेकिन पेरेंट्स का काम है कि वो थोड़ा नज़र रखें उन पे। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे हैं ये जो छोटी छोटी व्लॉगिंग करके मशहूर हो रही हैं, अच्छा काम करें बुरा काम करें? अगर पॉजिटिविटी में लिया जाए पेरेंट्स के साथ उनकी निगरानी में, तो फिर मुझे लगता है बुरा नहीं है, लेकिन वैसे बिल्कुल बुरा काम है ये ब्लॉगिंग वगैरह तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, ताहिर वसीम हूँ। सर, क्या करते हैं? मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, जॉब से। सर, ये आजकल जो बच्चे हैं वो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के सोशल मीडिया पे लग गए हैं कि उनकी किसी भी तरह एक वीडियो वायरल हो जाए और मशहूर हो जाए रातों रात। इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए जी, चूँकि ग्लोबल वर्ल्ड है, आप सोशल मीडिया की जो पावर है उसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें। पॉजिटिव करें तो ये अर्निंग भी है और इससे बच्चे सीखते भी हैं। लेकिन अगर उसको आज़ाद छोड़ देंगे, कंट्रोलिंग नहीं होगी, तो फिर जो आजकल आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इंसिडेंट नज़र आ रहे हैं वो होते रहेंगे। तो पेरेंट्स की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि कौन सी साइट्स जो हैं उनके लिए हार्मफुल है और कौन सी जो है उनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद इरफान। सर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ये आजकल जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत इन हो गए हैं, हमारे यंगस्टर बहुत इन हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि रातों रात वो बस एक वीडियो वायरल हो और वो मशहूर हो जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरा काम है सोशल मीडिया पे, जो आजकल जो है ना ट्रेंड चला हुआ है। ये यंग जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ठीक है, ये अपना मशहूर करने के लिए कोई ना कोई गंदी वीडियो बना देते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना पढ़ाई पे भी तवज्जो नहीं देते। ज़्यादातर जो है ना ये वालिदैन जो है ना वो ख्याल करें अपने बच्चों का। ये बहुत मसला है, या बिजली का बहस बनता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है ना ये ज़्यादा मोबाइल जो है ना यूज़ करना ये बुरी बात है, इससे बहुत इशू आ रहे हैं आजकल। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें और उन्हें मतलब ऐसी साइट से दूर रखें, या उन्हें बस एक लिमिटेड एरिया रहने दें? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये इससे दूर ही रखें मोबाइल से, ठीक है। अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको मोबाइल से जितना हो सके ना वो दूर रखें। पढ़ाई की तरफ ये बच्चे तवज्जो दें, ठीक है, और ये जितनी तवज्जो दे रहे हैं ना मोबाइल की तरफ, ठीक है, वो नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका?
वालेकुम सलाम जी, तौसीफ अहमद क्या करते हैं सर आप? जी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सर ये जो आजकल छोटे बच्चे हैं और यंगस्टर हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत इन है, वो वीडियोस बनाते रहते हैं और वो चाहते हैं हम रातों रात हमारी वीडियो वायरल हो जाए और हम फेमस हो जाए, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? असल में आजकल जो जदीद दौर है, डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें आम हो चुकी है। तो आजकल जो मोबाइल फ़ोन है इसमें अक्सर एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिसमें टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो असल में ये एक बीमारी है, इसको समझते हैं, क्योंकि हम जो हैं यूज़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के। जिस तरह जो बड़े लोग हैं उनको यूज़ चाहिए होता है, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज वगैरह करते हैं, लेकिन ये जो है ना बच्चों पे रुझान इसका ज़्यादा हो चुका है। अक्सर जो वालिदैन हैं वो छोटे बच्चों को मोबाइल देते हैं कि वो हमारी जान छोड़ दें, खामोशी से बैठ जाएं, हमें तंग ना करें। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चों पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, क्योंकि इसके शुआएँ होती हैं स्क्रीन की। तो हम बच्चों से तो जान छुड़ा लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर उनको डिजीज़ हो जाएंगी, बीमारियाँ हो जाएंगी, जिससे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कम से कम इनको दिया करे बच्चों को, खास तौर पे मतलब 7 साल से लेके 15 साल की उम्र तक बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो आपकी क्या ख्याल है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई छोड़ के बिल्कुल इनमें लग गए वीडियोस में, तो उनको वीडियोस और पढ़ाई दोनों को बैलेंस रखना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नहीं, यूज़ करें किसी हद तक, एक लिमिट होती है ना। लेकिन ये जो है ना आजकल जो पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो तो लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो वो गलत चीज़ें देख लेते हैं, जिस वजह से वो गलत साइड पे चले जाते हैं। तो इस पे इफेक्ट पड़ता है। तालीम तो वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो पढ़ते तो हैं, लेकिन उससे साइड इफेक्ट पड़ जाता है कि वो फिर ज़्यादा उनका रुझान उस तरफ चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रहीमुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं अफारे में जो ताजर और कारोबार करता हूँ। अच्छा सर, ये जो आजकल बच्चे हैं, यंगस्टर, यूथ और छोटे बच्चे जो हैं, ये आजकल बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ करने में लगे हुए हैं, ना उनको पढ़ाई की परवाह है, ना माँ बाप की परवाह है। इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? ये तो बहुत गलत ट्रेंड है। इस पे जो हमारा माशरा है वो बहुत बिल्कुल एक गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि अब तो जो बड़े भी है वो भी ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं कि सिर्फ मशहूरी के लिए, ठीक है, तो ऐसे ऐसे वो करते हैं कि बिल्कुल गलत है। तो इस पे जो है ना, जो माँ बाप है उनको भी ख्याल करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो इस तरह काम करे उनके खिलाफ एक्शन हो। आप देखो आजकल भी कोई भी हरकत करते हैं बहुत गंदा, तो वो मशहूरी के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या राय है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के फ़ोन पे नज़र रखनी चाहिए, चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए? तो जो पेरेंट्स है उनके अपने बच्चों के मोबाइल चेक करने चाहिए, ये कौन से ऐप यूज़ करते हैं। आजकल तो ऐसे गंदे गंदे ऐप्स आए कि क्या बताऊँ, मैं आपको टीवी पे बोल नहीं सकता हूँ। तो बच्चों, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल करें, उनका केयर करें, और क्या यूज़ कर रहे हैं उनको जो है ना, क्या नहीं कर रहे, उन पर पूरी नज़र रखें। आजकल हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और इनको बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। जैसा कि हमारे आम लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि नौजवानों ने और बच्चों ने सोशल मीडिया को अपनी लामहदूद ख्वाहिशात पूरी करने का वतीरा बना लिया है, तो उनका मज़ीद ये कहना था कि वो पढ़ाई से बहुत दूर हो गए हैं। अपनी मेज़बान शिज़ा परवेज़ को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।